Okay, good morning, 6th standard. So we are going to start with a new topic that is on page number 4, geographical framework. We are doing chapter 1 of history. We have already done the definition of history. Why do we study history? The time frame under study. And the next topic which we are going to start today is on page number 4, geographical framework. Now the geographical location of a area also tells the history of the past history of that place. For example, if you see that mountainous area, जो mountains area है वहाँ पे जो लोगों की लिविंग है वो वैसी ही है जो जैसे पहले लोग आते रहे, और वही आप जो नॉर्मल एरिया में देखेंगे जहाँ पे फर्टाइल लैंड, जहाँ पे प्लेन लैंड्स है, वहाँ के रहने की जो लोग है, रहने का तरीका है वो भी अलग है. सो एक जोग्राफिकल एरिया भी हमारे हिस्ट्री को बता दी कि उस तरह किस टाइप के लोग रहते हैं. फैक्टर्स सजेस्ट टाइप ऑफ लैंड, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट अफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट. दिस यू कैन सी दैट द पीपल लिविंग इन लद्दाख, जो लद्दाख में रहते हैं वो हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे और जिनका स्किन कलर है वो भी अलग होगा. आपने अफ्रीकन्स देखे होंगे, उनका स्किन कलर, उनका हेयर टाइप अलग होगा. तो इसी तरीके से हर एक एरिया का क्लाइमेट, लैंड, वाटर, एवरीथिंग अगर अलग है तो वहाँ के आपका ह्यूमन सेटलमेंट, स्टे, रहने का तरीका, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. नाउ अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो द अर्ली मीन्स द earlier settlement, they used to settle around the river so that they can have the plenty of water, because as you know that water is essential for everything. So they used to settle on the banks of rivers. Generally 3 main banks were there where we can see the major settlements of early humans. They were the Indus, Ganga and Brahmaputra. I just want to show you the areas that is on page number 169. आपकी जोग्राफी का पार्ट है 169, उसमें आप देख सकते हैं. आई बी शोइंग यू द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एरिया वेयर द ह्यूमन सेटलमेंट्स वर देयर. This is the map of India. This is the physical map of India. You can see this is the Indus River and its tributaries. I just want that you should have a look in your book also, okay? Because here very small, everything is written in very small, so I think it will be hard for you people to understand. So this is Indus and these are the tributaries of Indus. Generally आप लोगों की settlements यहाँ पे देखेंगे. This is इंडो गैंगटिक प्लेन्स, मीन्स यहाँ पे क्या रिवर गंगा फ्लो हो रही है. दिस इज़ द एरिया, यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा रहते थे. एंड दिस इज़ द ब्रह्मपुत्र एरिया. सो जनरली यहाँ पे आप लोग देखेंगे हिस्ट्री के बहुत सारे सेटलमेंट्स, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटल हुए थे सो दैट दे कैन ईजिली गेट द वाटर, बिकॉज एज वी नो दैट वाटर हर एक चीज़ में यूज़ आता है. ठीक है. सो नाउ देयर वर लॉट अदर थिंग्स ऑल्सो like fertile lands. The people used to settle where they can find the fertile land so that they can do the agriculture, because at that time the livelihood, the way to live was the agriculture, dependency on the agriculture. एग्रीकल्चर करो, खाना खाओ, या फिर ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे वी कैन ग्रो क्रॉप्स. सेकेंड वॉज नियर बाय सोर्स ऑफ वाटर, because they can do all such of things from water. That is why they want to settle near water. Second, good climate. They just don't want to put their settlement in such an area where the bad climate is there, like excessive hotness is there, yeah, excessive coldness is there. So they want to settle in such an area where moderate type of climate is there. In Madhya Pradesh where we are staying, it's a moderate, this area is having a moderate type of climate, because in summer it's not too hot that it will burn somebody, and in winter it is not too cold that it will freeze somebody. So it is having a moderate type of climate. So generally the people, the early humans, when they settle
इन एरियाज दे यूज टू सी ऑल सच थिंग्स। जब भी वो किसी जगह पे रहते थे तो वो रहने के लिए क्या चीज़ें देखते थे? पहली चीज़ है फर्टाइल लैंड देखते थे। फर्टाइल लैंड में जहाँ पे वो अच्छी तरीके से खेती कर सके, फर्टाइल मतलब उर्वरक ज़मीन। सेकंड इज़ नियर द सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पे उनको आसानी से पानी मिल सके। थर्ड, गुड क्लाइमेट, सो दैट दे शुड नॉट गेट too hot in summer and too cold in winter, so that is why they just find good climate. And the fourth is rivers served as a means of transport also, because at that time we can say that transportation was not so advanced, so they thought ki making a boat and going from one place to another is a easier mode of transportation rather than doing the other things by walking, or because the early settlement they used to walk a long distance. पहले के लोग जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पैदल ही चला करते थे। जैसे वो चल रहे हैं वो थक गए तो एक जगह पे रुकते थे, वहाँ पे वो खाने के सामान ढूंढते थे, फिर वो आगे प्रोसीड करते थे। तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने घर बनाने शुरू किए, ग्रुप में रहना शुरू किया, धीरे धीरे एवरीथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। सो नाउ उन्होंने ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन हो गया, इट हैज़ टेकन टाइम। नाउ उन्होंने जो तरीके हैं, जो रिवर सोर्स है, जो पासेस है बिटवीन द माउंटेन्स, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दीज सोर्सेज लाइक पासेस। पासेस क्या होते हैं? आपने देखा होगा माउंटेन्स के बीच में पतले पतले रास्ते निकले होते हैं, सो दीज आर द पासेस। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द पास ऑल्सो। इट इज़ again it is on page number 169. I just want to show you one pass, that is Nathula pass. आप यहाँ पे देखेंगे this area, this pink one. If you see that this is the mountain area, this is also the mountain, और उसके बीच का जो एरिया that is called the Nathula pass. I think it is a little bit blur, but I just request you people to have open the map also on page number 169, and please go through the map also with the audio and the reading of the books. So they have used the passes between the mountains to do the exchange of colors and trade. बिकॉज धीरे धीरे करके लोगों ने ये जानना शुरू किया कि उनको जीने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, उनको कुछ और भी करना चाहिए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके ट्रेड करना शुरू कर दिया, और जो माउंटेन के बीच के पासेस हैं उससे सामान एक्सचेंज करना भी शुरू कर दिया, सो दैट दे कैन गेट अ गुड लाइवलीहुड। नाउ जो साउथ में कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मैं आपको बताना चाहूँगी, पेज नंबर 169 पे आएंगे। वहाँ पे लोगों ने क्या किया, थ्रू वाटर सोर्सेज उन लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुरू कर दिया, सो दैट दे कैन ईजिली गेट द थिंग्स फ्रॉम द लैंड ऑल्सो एंड फ्रॉम द वाटरवेज ऑल्सो। वेट, आई विल बी शोइंग यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय कोस्ट लाइन, है ना। ओके, कोस्ट लाइन क्या होता है, आई विल बी शोइंग यू। ओके, दिस इज़ द मैप, दिस यू कैन सी अरेबियन सी एंड दिस इज़ द लैंड। ये एरिया, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, जो सिर्फ वाटर से सराउंडेड है, ये सारी एरियाज क्या हैं, दीज आर द कोस्ट लाइन्स। ये कोस्ट लाइन है, वो लैंड जो वाटर और ज़मीन के बीच का है, दैट इज़ कॉल्ड द कोस्ट लाइन। सो द पीपल हैज स्टार्टेड द साउथ एरिया। ये क्या है, नीचे वाला पार्ट, दिस इज़ द साउथ। तो साउथ में उन्होंने क्या करना शुरू किया, थ्रू वाटर सोर्सेज उन लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया। और नॉर्थ में आप देखेंगे, नॉर्थ में जनरली दिस इज़ द नॉर्दर्न पार्ट एंड दिस इज़ द सदर्न। तो सदर्न में आप जनरली पानी देखोगे। तो उन्होंने बोला कि हम नॉर्थ से थ्रू माउंटेन्स, दीज ऑल आर माउंटेन रेंजेस, माउंटेन से उन लोगों ने सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना शुरू किया। और साउथ से थ्रू वाटर सोर्स उन लोगों ने जो सामान एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। सो स्लोली दे आर गेटिंग मोर स्मार्टर एंड दे नो हाउ टू लिव देयर लाइवलीहुड इन अ प्रॉपर वे। सो धीरे धीरे करके उन्होंने टाउन्स बनाए, सिटीज़ बनाए, और इस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव स्टार्टेड मेकिंग ह्यूज किंगडम्स। So this is about the geographical framework. Now the next topic which I am just going to
tell you is the reason for the movement of people. Why the people move from one place to another. लोग क्यों घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह. आप भी देखोगे कि समर वेकेशंस में आप लोग भी घूमने जाते हो. हम घर पे क्यों रहते हैं? वाई वी गो आउट? बिकॉज वी ऑल्सो नीड रिफ्रेशमेंट. हमको चाहिए होता है कि हम थोड़े फ्रेश हों, जो सेम काम करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिले, हम थोड़ा घूम के आए तो माइंड रिफ्रेश करें. उसी तरीके जो पीपल थे उस वक्त के, दे ऑल्सो रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नॉट फॉर द रिफ्रेशमेंट बट टू गेट द things for the basic things like basic requirements. They move in search of food. वो इसलिए घूमते थे ताकि उनको खाना मिल सके. Because at that time they were not having कि इसी जगह पे रहना और यहीं पे हमें करना है. They were hunters and gatherers only. Hunters and gatherers के बाद जो एक लाइफ आती, they were started living that life, not settled life. ये उस टाइम की बात बता रहे when they have not started living a settled life. So they move from one place to another in search of food. They also move from one place to another because of natural disasters. हम लोग कभी एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स इतने ज़्यादा होते हैं. नेचुरल डिजास्टर्स वो होते हैं जो प्राकृतिक आपदा होती है जो अपने आप ही आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया. अभी आप देखेंगे वॉल्केनोज हो गए. दीज आर द नेचुरल डिजास्टर्स. इनकी वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूव करते हैं. तीसरा रीज़न है रिलीजियस लीडर. बिकॉज ऑफ सम प्रीचिंग्स ना लोग क्या करते हैं कि ये हमारे गुरु यहाँ पे, हम यहाँ पे जाएंगे ना. आपने मोस्टली अगर आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कभी कभार हॉलीडेज़ कभी 10 डेज़ की मिलती हैं तो आप लोगों को कभी रिलीजियस प्लेसेस पे लेके जाते हैं ताकि आप स्पिरिचुअल बातें सीखें, रिलीजियस बातें सीखें. तो कभी कभार लोग रिलीजियस अपने लीडर को फॉलो करने के लिए, उनकी टीचिंग्स पाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. ट्रेडर्स मूव टू सेल देयर गुड्स सो फार टू प्लेसेस. नाउ ट्रेडर्स जनरली जो उस वक्त के जो सामान इधर से उधर एक्सचेंज करते थे, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेल देयर गुड्स. क्योंकि हम बैठे रहे और ये सोचे कि सामान हमारा बिक जाएगा तो ऐसा होगा नहीं. वी हैव टू गो एंड वी हैव टू सेल. नाउ इन दिस पेंडेमिक गोइंग ऑन, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कार्ट पे, बाइक्स पे, वैन, छोटी छोटी सी कार में सामान सेल आउट करते हैं बिकॉज द पीपल आर नॉट मूविंग आउट. बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे. तो व्हाट दे आर थिंकिंग, इफ़ द पीपल कांट गो टू द मार्केट तो द मार्केट कैन कम टू देम. मार्केट उनके पास आ सकता है सो दैट दे कैन इजीली परचेज द स्टफ. सो लोग अपनी इनकम के लिए दे आर डूइंग दिस. आपने अगर एज्यूम किया होगा तो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज किंग सेंड द आर्मीज टू कॉन्कर लैंड. नाउ कभी कभार लोग इसलिए भी मूव करते थे, जो किंग्स थे वो इसलिए अपने आर्मीज़ को सेंड करते थे और क्या करते, लैंड कैप्चर कर लेते थे. अगर हमारी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया और बोला कि अपनी इस ज़मीन से चले जा, देन वी हैव टू गो. इस वजह से भी लोग क्या करते थे, मूवमेंट करते थे. एंड द लास्ट वन इज़ टू डिस्कवर न्यू लैंड. कहाँ कौन सी फर्टाइल लैंड है उस जगह पे जाके रहे, then also they do the movement. So I just want to show you the lines which you have to underline in the book and which you have to read. This from geographical framework you have to underline, and this you have to read it also, and this also from the geographical framework, and this for the reason of the movement of people. This is important. Okay, so please read it also and understand it also. If you are having any problem, you can message me through WhatsApp and you can clear your doubts. Now our next topic is sources of history. This I am going to explain you now. So first you just underline the lines which I have underlined in the book. These are the sources of history. मतलब from where we get the knowledge of the past. हमको कौन से तरीके से पता चलता है कि yes, this was a part of our history. ठीक है. So now I am going to explain you this. Till here, secular till here I'll be explaining you today. Okay. Now I'll be explaining you. Okay. So next topic was your sources of history. Source means होते हैं the way different ways through which we know about our history. हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, किसी ने बता दिया तो पता चल गया, या फिर हमने कुछ एविडेंसेस देखे हैं जिसमें पता है अच्छा लोग पहले ज़माने में ये यूज़ करते थे. Now there is a museum in Indore.
ज़ू ने आपने देखा होगा अगर इंदौर में ज़ू, उसके जस्ट थोड़े से दूर पे ही आपका एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे आपकी जो पास्ट है से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी गई हैं ताकि आपको पता चल सके व्हाट वाज देयर इन आवर पास्ट। सो ये सारे तरीके हैं लोगों को बताने के लिए कि येस दीज आर द थिंग्स विच आर यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स, विच आर यूज्ड बाय अदर people who were there in the past. So some were like coins, some were literary sources, लिखे हुए कुछ coins हो गए, कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो बायोग्राफी लिखी है या अकाउंट्स लिखे हैं उनको पढ़ के भी हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नाउ एक न्यू टर्म है आपका इसमें, इट वॉज नॉट देयर इन द ओल्ड बुक, सो आई जस्ट वॉन्ट दैट यू शुड नो दिस। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग ये एक केमिकल टेस्टेड है, एक केमिकल के द्वारा टेस्ट किया जाता है उन चीज़ों पे जो हमें मिली गई होती है अंडर द अर्थ, जो ज़मीन के नीचे। ऑब्वियसली जो पास में चीज़ें हुई, आपने कभी खुदाई की होगी तो आपको कुछ मिली होगी। अभी आपने देखा जब हमारा राम मंदिर बन रहा था तो आपने देखा बहुत सारी चीज़ें हमको ज़मीन के अंदर से मिली हैं, ठीक है। तो जो ज़मीन की चीज़ों को निकाल के उनको क्लीन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। जो ज़मीन से अंदर की चीज़ें निकाल के उसको केमिकली टेस्टेड से क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर लिटरेरी, आर्कोलॉजिकल एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। सो फर्स्ट हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे। लिटरेरी मीन्स द लिटरेचर पार्ट, ओके। नाउ इसमें आप फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मीन्स द स्क्रिप्ट विच इज़ रिटन बाय द हैंड्स, स्क्रिप्ट जो हाथ से द्वारा लिखी गई। लिटरेरी सोर्सेज आर रिटन रिकॉर्ड्स, ये वो रिकॉर्ड्स है जो रिटन है, इट्स नॉट बाय वर्बल और इट्स नॉट बाय द evidence which we have seen, it's written somewhere. So the sources which we are getting from written records, they are called as literary sources. Earlier the paper was not there, earlier papers was not invented, so the people used to write on the bark of the birch tree। एक ट्री है उसकी बार्क पे लिखा जाता था या फिर पाम लीव्स पे लिखे जाते थे और स्टोर की जा सकते थे, बट दिस कैन नॉट बी स्टोर फॉर टू मैनी ईयर्स। सो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए उनको मोनेस्ट्रीज़ में, टेम्पल्स में अंडर द केयर ऑफ द गवर्नमेंट उनको रखा गया ताकि हम प्रेजेंट जनरेशन को बता सके कि अर्लियर विच लैंग्वेज वाज यूज्ड, बिकॉज हिंदी बहुत बाद में आई थी। अर्लियर there were the people used to write in Prakrit language, they used to write in such languages. So manuscript can be divided into two categories, religious and secular। जो लिखा गया है या फिर वो religious हो सकता है या फिर वो secular हो सकता है। जो नॉलेज है, religious नॉलेज मतलब वो नॉलेज जो हमें पुराण, वेद, उपनिषद से मिली हो। These scripts are known as religious sources। वो सोर्सेज जो हमें हमारे पुराण और वेद से मिले उन्हें हम कहते हैं रिलीजियस सोर्सेज। और सेकुलर सोर्सेज वो होते हैं जो हमें किसी के द्वारा किसी के अकाउंट में से मिली हो, उसे हम कहते हैं सेक्युलर सोर्सेज। लाइक अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य, उनकी बुक में मिला हो, या फिर एक प्ले जो कालिदास ने लिखा था उनकी बुक में मिला हो। सो दीज आर द सेक्युलर सोर्सेज। सो लिटरेरी सोर्सेज में हमने दो चीज़ें पढ़ी, रिलीजियस सोर्स एंड द सेक्युलर। लिटरेरी सोर्स वो सोर्सेज होती हैं विच आर रिटन रिकॉर्ड्स एंड विच अर्लियर वॉज रिटन ऑन अ बर्च ट्री एंड और ऑन पाम लीव्स। Religious sources are which are religious in nature and get from the Purans, Ved and Upanishads. And secular sources are those sources which we get from a book written by Chanakya and Kalidas and many other famous people who have searched for this knowledge and written. So I am just showing you the picture also. It was written in a birch bark manuscript. It is there on the book. नाउ जो लैंग्वेज लिखी है आप नहीं पढ़ सकते बिकॉज इट इज़ रिटन इन सम अदर लैंग्वेज, ओके। सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक as well as the underlined part also. Thank you class.